हाँ जी, IPv6 में दोस्त सबसे पहले तो बात यह है कि वाई डू वी नीड एन IP एड्रेस। मैं पूछ रहा हूँ, इट्स अ क्वेश्चन, वाई डू वी नीड एन IP एड्रेस? Okay, because we want to communicate with other devices. So for the communication, I also need the MAC address. So my question is still not answered. कि why do we need an IP address? IP address. Absolutely. IP address we can check, IP address we can change, and on the basis of layer 3, that means network layer, we definitely need something to be put it in, something we need to put in the on the basis of layer 3 protocols, right? So for the layer 3 we need a IP address. Am I clear? आज होनी है आपके साथ क्या हुआ? अच्छा, तो friends, the need of IP address is that without an IP address we cannot communicate. Yes or no? Okay. Every device connects to internet requires a unique number. This unique number is called IP address, right? It is the unique identity of a computer. Agree or not? At the same time, two computers cannot have the same IP address. Yes or no? Unless we have applied some PAT kind of thing, right? Okay. And then friends, by default, all these numbers, all these IP addresses, be it the IP address, be it some MAC address, whatever, they all are originally given by IANA. ठीक है, देखो कैसे होता है. First of all, IANA, right? IANA gives it directly to the regional part, right? Regional part means directly they have given to a particular region, right? And हाँ जी, सबसे पहले ये आ रहा है आपके पास आयना से, ठीक है. आयना के बाद फिर गिवन टू द रीजनल पार्ट, एंड देन फ्रॉम द रीजनल, बिकॉज आयना इज लोकेटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स, राइट? तो वहां से तो यूनाइटेड स्टेट से डायरेक्टली उसके लोकल पे चला जाता है, ठीक है ना? वहां से तो डायरेक्टली उसके लोकल पे चला गया. बट इफ इट्स सम अदर कंट्री, तो फिर वो पहले नेशनल पे जाएगा, फिर वहां से लोकल पे जाएगा, फिर एंड यूजर पे जाएगा. यहाँ से भी पहले लोकल आईएसपी को मिला, उसके बाद एंड यूजर को मिला, या फिर लोकल आईएसपी से डायरेक्ट एंड यूजर को मिला. दैट्स द सेम थिंग, राइट और रॉन्ग? बस इस तरह से हमारे आईपी एड्रेसेस वगैरह हो, चाहे मैक एड्रेस हो, वो इस तरह से एलोकेट होते हैं. ओरिजिनली दे आर गिवन बाय आयना, ठीक है. और मैक एड्रेस के लिए कोई ऐसा नहीं होता कि भाई ये पर्टिकुलर देना है, वो पर्टिकुलर देना है, इस जगह पर उस जगह पर. वो डायरेक्टली उनके रीजनल्स को असाइन होता है या फिर उसके नेशनल को असाइन होता है, उसके बाद वहां से आगे असाइन होता है. बट मैक एड्रेस की तो मेन चीज क्या है कि मैक एड्रेस इज डायरेक्टली बीन गिवन टू द ब्रांड्स, राइट? राइट और रॉन्ग? उनको दिया गया वेंडर स्पेसिफाइड फर्स्ट 24 बिट, एंड रेस्ट ऑफ द 24 बिट्स आर रैंडमली असाइंड बाय द वेंडर. तो फिर वो देश के दुनिया के कौन से कोने में जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे, दैट डजंट मैटर. गॉट इट? अब this is how INA, Internet Assigned Number Authority, will give the IP addresses. And then जो IPv4 है उसमें टोटल कितने 2^32 एड्रेसेस हैं या नहीं है? So friends, do you really think that 2^32 addresses, that means total are how much? Approximately 4.3 billions. But friends, the population of the globe in 2003, it was in 2003 the population was was 6.8 billion, right? But now it was in 2003, so now it's 2015. 12 years have been passed. So now approximately the population is 10 billion, I would say, minimum. Agree or not? And the number of addresses we have is, and we need is, the population is 10 billion. And friends, see, everyone is using the multiple devices. मेरे पास मेरा मोबाइल है, उसमें भी इंटरनेट है, मेरे पास मेरा कंप्यूटर है, उसमें भी इंटरनेट है, तो मतलब दोनों में इंटरनेट है, तो मतलब
Obviously it's using two IP addresses, two different IP addresses or not. So friends, from where actually they are getting the IP addresses? भाई IP addresses तो कम है ना यार, इतने तो है नहीं जितने मुझे चाहिए. Agree or not? तो फ्रेंड्स वी हैव टू सेव द IP addresses because obviously that's not enough. यहाँ मैंने दिखा रखा है कि ग्लोब का सिर्फ इतना ही पार्ट कवर हो रखा है, ये वाला पार्ट तो अभी बच गया ना दोस्त. हाँ है ना. तो डेफिनेटली वी नीड्स अ लॉट ऑफ IP addresses and IPv4 is not enough. Agree? Then about IPv4 short introduction again. 1981 में दिया गया था, 1990 में 1/8 were allocated, 2000 में half of them were allocated and 2002 में 2/3 were allocated. और आईना का जो पूल था वो लास्ट आईपी एड्रेस यहीं पर रिलीज हुआ था. भाई हम ट्रिपल पी के थ्रू, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के थ्रू आई कैन सेव द आईपी एड्रेसेस. हाउ? दैट समथिंग वी गोना लर्न इन वैन. ठीक है. देन DHCP एड्रेस शेयरिंग. व्हाट इज दैट? कि भाई एक ही एड्रेस मल्टीपल लोगों को मैंने असाइन कर दिया थ्रू अ DHCP. हाउ? कल ही पढ़ा है ना. और नैट के थ्रू या फिर CIDR या VLSM के थ्रू, दैट मीन सबनेटिंग VLSM वगैरह. एग्री और नॉट? नाउ फ्रेंड्स दीज आर सम टेक्निक्स जिनके थ्रू हम आईपी एड्रेसेस की शॉर्टेज को रोक रहे थे, आईपी एड्रेसेस की वेस्टेज को रोक रहे थे एक्चुअली, सो दैट शॉर्टेज ना हो. बट स्टिल द मेन थिंग इज दैट इट्स नॉट इनफ. हाँ या ना. तो नाउ फ्रेंड्स सी एक और बात है कि थ्योरेटिकली तो 4.3 बिलियन है ना, थ्योरेटिकली तो 4.3 बिलियन डिवाइसेस को आईपी एड्रेस मिल सकता है ना. लेकिन उसमें से भी सोचो जरा कि भाई क्लास डी और क्लास सी तो रिजर्व्ड है, और ए बी और सी में से भी कुछ एड्रेसेस रिजर्व्ड है, कुछ नेटवर्क आईडी भी होते हैं, कुछ ब्रॉडकास्ट आईडी भी होते हैं. तो दोस्त कर करके ना टोटली स्पीकिंग 250 मिलियन ही बचते हैं जो हम वैलिड हैं, जिनको हम यूज कर सकते हैं एक्चुअली. बट क्वाइट ऑब्वियस कि 250 मिलियंस आर नॉट इनफ. और अगर आप ये चीज़ देखना चाहते हो कि 250 मिलियन ही कैसे हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर साथ में RFC का स्टैंडर्ड लिखा हुआ है. यू कैन गेट टू दिस RFC. इफ यू वांट टू रीड दिस RFC, सर्च इट ऑन द नेट एंड यू कैन गेट इट. गॉट इट? ठीक है ना. आप देखो, नंबर वन, नंबर ऑफ एड्रेसेस ऑलरेडी बहुत कम है. एंड देन हाउ इट्स एक्चुअली गेटिंग वर्ड्स. कंप्यूटर्स तो हैं जिनको एड्रेसेस चाहिए, सही बात है. बट दोज अपार्ट फ्रॉम दोज कंप्यूटर्स, these devices also needs IP address. Agree? No? Agree? प्रिंटर को भी चाहिए. Agree? गाड़ियों में भी GPS सिस्टम जो है सारा. अब पूछ लो फ्रिज में कैसे चाहिए, पूछो पूछो. स्मार्ट फ्रिज. भाई थोड़े टाइम बाद ऐसा भी टाइम आएगा कि भाई इसे फ्रिजेज में भी आप मतलब कोई क्या बोलूं. हाँ देखिए एक और समझदार आएगा, टीवी में, फ्रिज में टीवी देख रहे हैं. बट फ्रेंड्स मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि वी नीड अ लॉट ऑफ आईपी एड्रेसेस. ठीक है. अब फ्रिज का जो भी सीन था वो हमारी आपस की बात है. ओके. तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली द नंबर ऑफ एड्रेसेस आर कम, so are less. Number of IP addresses are very less compared to the devices that we need. So in order to get saved from that, we have been introduced this IPv6. IPv6 को ओरिजिनली बोला गया था क्या? इंटरनेट प्रोटोकॉल नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है. इसमें टोटल 2⁻128 एड्रेसेस है. 2⁻128 एड्रेसेस, दैट मीन्स 340 ऑक्टाडेसिलियन. अब ये मिलियन बिलियन ट्रिलियन तो बहुत सुना था, अब ये ऑक्टाडेसिलियन क्या मजाक है. ऑक्टाडेसिलियन मीन्स 340 इंटू 10⁻36 एड्रेसेस. बहुत है, समझे. इतने एड्रेसेस है दोस्त, वो खत्म नहीं होंगे. अब एक छोटा सा स्टैट्स है, छोटे छोटे स्टैट्स क्या है कि अगर आपकी बॉडी में ये लो देख लो, अगर आपकी बॉडी में 1028 ऑर्गन है
और हर एक ऑर्गन को तो मैं 7 यूनिक IPv6 एड्रेस दे सकता हूँ। हाँ जी। और दूसरी चीज, अगर जो वन मोर कैलकुलेशन वॉज कि ऑन पर स्क्वायर इंच कितना होता होगा, इतना सा है ना। पर स्क्वायर इंच ऑफ अर्थ में यू कैन असाइन मिलियंस ऑफ IP एड्रेसेस, मिलियंस ऑफ IPv6 एड्रेसेस। मतलब अगर वो कुछ मार्शियंस वाला सीन हो गया, मार्शियंस ने अटैक कर दिया और सब बंदों को, लिलीपुट देखी है ना, सब बंदों को लिलीपुट साइज का बना दिया, इतना इतना, और बंदों को IPv6 एड्रेस हो तब भी खत्म नहीं होंगे यार, बहुत है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज फ्रेंड्स, IPv6 एड्रेसेस आर द नेक्स्ट जनरेशन। ये देखो, इतने IPv4 एड्रेस हैं, इतनी पॉपुलेशन थी 2003 में, ये देख लो इतने ही है बस IPv6 एड्रेसेस। इसको एक सांस में कोई पढ़ सकता है तो पढ़ लो। तो मुझे पता है कोशिश करनी शुरू भी कर दी होगी पढ़ने की, समझदार लोग, ठीक है। देखो दोस्त, IPv6 you are saying that practically it's not been implemented, that's right, but actually the things are कि practically it is not been implemented on the global network. Global network मतलब over the ISP, over the internet, it has not been implemented yet, but in the internal company you can definitely use that. Internally organization के अंदर अंदर you can use that, you can work on the IPv6, that's not an issue, right? तो इफ आई एम सेइंग इट्स नॉट इम्प्लीमेंटेड, नॉट इम्प्लीमेंटेड का मतलब है कि ग्लोबली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। फॉर योर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन यस इट्स वर्किंग फॉर श्योर, ठीक है। अब CCNP में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे यहाँ पर आपका कंपनी है, इस कंपनी में चल रहा है IPv6, कंपनी की दूसरी ब्रांच है, हियर ऑल्सो यू आर रनिंग IPv6। लेट सपोज दिस ब्रांच इज गुड़गांव एंड लेट सपोज दिस ब्रांच इज टेक्सास, ठीक है। So from Gurgaon to Texas, if I'm communicating, definitely I'm communicating via ISP or not? और ISP के साथ हूं तो obviously it would be an IPv4 or not? तो दोस्त, I will tell you about the tunneling. टनल में क्या है कि IPv6 will travel over IPv4, ठीक है। एक्चुअली ISP के हिसाब से तो ये IPv4 ही ट्रैवल कर रहा है, बट IPv4 के अंदर IPv6 चल रहा है, ठीक है। वो चीज ISP को नहीं पता। टनलिंग, अगर मैं टनल क्रिएट करूंगा, ISP को पता लग सकता है, ISP को बड़े प्यार से पता लग सकता है, नॉट एन इश्यू, मैं बताऊंगा भी कि कैसे पता लग रहा है। बट द थिंग इज कि ऐसा हम करते हैं टनलिंग, ठीक है, ठीक है। इसको बोलते हैं कि IP ओवर IPv6 ओवर IP के ऊपर आपने IPv6 चला रखा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा टनलिंग का प्रोटोकॉल, उसको पढ़ेंगे CCNP में, यहाँ नहीं। अब नेक्स्ट थिंग, आगे चले। नाउ सी, एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में होना चाहिए, मेरे वो बात बताओ, IP एड्रेसेस के कितने टाइप होते हैं? कौन से? पब्लिक और प्राइवेट, है ना। अब दोस्त एक तरह से मैं बोलूं तो अपीपा भी तो एक टाइप ही है, जो अलग है। अपीपा को आप एज ए प्राइवेट ही यूज कर सकते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट स्टिल अपीपा इज अ टाइप, यस और नो। समवेयर इट इज अ टाइप, बट यूजुअली बुक्स में ये लिखा होता है कि सिर्फ दो ही टाइप होते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक, ठीक है। अब दूसरी चीज, IP एड्रेस के कितने वर्जन हैं? दो वर्जन है, कौन कौन से? अच्छा, अब एक बात सोचो यार, एक बड़ी कमाल की बात, एक IPv4 है एंड वन इज IPv6, तो IPv4 से पहले कोई V1 V2 V3 नहीं थे क्या? ऐसा थोड़ी डायरेक्टली वर्जन 4 ही बना दिया, 4 मेरा लक्की नंबर है या 4 तारीख को मेरा जन्मदिन था, कुछ भी ऐसा थोड़ी होता है यार। वर्जन 1 2 और 3 कहाँ गया 4 से पहले? पहला तो क्वेश्चन ये है, और 4 के बाद 6 क्यों आया, 5 कहाँ गया? तो तो हैं? कौन सा? अबे ऐसे क्यों बोल रहे, 4 पार्ट में डिवाइड है भाई, ऐसे मत बोल, तू डरा रहा है यार मुझे। ऐसे बोलो 4 ऑक्टेट्स में डिवाइडेड IPv4, 4 पार्ट में डिवाइड नहीं, पार्ट और ऑक्टेट में बहुत फर्क है। तो फ्रेंड्स लेट्स सी व्हाट हैपेंड टू IPv5। वर्जन 5 इंटरनेट प्रोटोकॉल वाज असाइंड टू स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल, इंटरनेट स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल, ठीक है, जिसको हम रियल टाइम स्ट्रीमिंग में यूज करते थे। किसमें? रियल टाइम स्ट्रीमिंग में, नंबर 1।
IPv4 के बाद दोस्त IPv5 दिया गया, बट स्टिल V5 इज नॉट कॉल्ड द सक्सेसर ऑफ वर्जन 4। सक्सेसर पता है क्या होता है? सही नहीं, सक्सेसर बेस्ट बात है, कुछ भी उसके बाद TIGRP की बात नहीं कर रहा, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। हाँ उसके बाद सी, हाँ उसके बाद वाला, सिंपली सेइंग आई एम द सक्सेसर ऑफ माय फादर। उत्तराधिकारी नहीं, उनके बाद जो आया है, ठीक है। मैं अपने पिताजी के, मैं मेरे जो मेरा पूरा वो है फैमिली ट्री है, मेरे फैमिली ट्री में आई एम माय फादर सक्सेसर, है ना, और माय फादर इज माय प्रेडिसेसर, है ना। ये होता है प्रीडिसेसर मतलब आपसे पहले वाले, सक्सेसर मतलब आपके बाद जो है, ठीक है। अब IPv5 is not considered as the successor of V4. Why it is not considered as successor? क्योंकि दोस्त प्रैक्टिकली ये नहीं चला, ठीक है। प्रैक्टिकली इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, और ऐसा बोलते हैं कि इसको अभी भी हम मिलिट्री एंड साइंटिफिक पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं, बट एक्चुअली आई डोंट बिलीव दैट। अगर इसमें इतनी प्रॉब्लम थी, इसको मिलिट्री और साइंटिफिक पर्पस के लिए क्यों यूज करोगे, और स्पेशली मिलिट्री पर्पस के लिए? कोई सा चक्कर ही नहीं बनता यार, समझे। जैसे IPv4 कितने बिट का था? 32 बिट, एंड दिस IPv5 was a 64 बिट, इज a 64 बिट, ठीक है। IPv5 64 बिट का होता है, और फिर IPv6 128 बिट का होता है, समझे। बट IPv5 was not a successful thing। अब IPv6 देखो, सबसे पहले दोस्त ये समझो कि IPv6 एड्रेस कैसा लगता है देखने में, ठीक है। रेडी? यार ये AC चला लो यार, चल रहा भी यही है, पसीने पसीने हो गए। चलो अब देखो फ्रेंड्स, एन IP एड्रेस लुक्स लाइक दिस, IPv6 एड्रेस क्या? चलो ठीक है जी। नाउ फ्रेंड्स, नंबर 1, IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है? 128 बिट का। तो क्या ये एड्रेस एक 128 का बिट का बना है या नहीं बना? लेट्स सी दैट। इट इज मेड अप ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर्स। वन हेक्साडेसिमल नंबर इज मेड अप ऑफ बाइनरी। One hexadecimal number, if I want to convert it into binary, how many binary bits it would be? 4. All agree with that or not? Anyone having any issue with that? भाई 0 से 15 तक होता है। 2 रेज पावर 0 इज 1, 2 रेज पावर 1, 2 रेज पावर 2 एंड 2 रेज पावर 3, सही है। जो मैक्सिमम नंबर है f, दैट मीन्स 15। 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 इज 15। इसमें कोई भी नंबर आप ले लो, इन 4 बिट्स के अंदर अंदर यू कैन गेट द नंबर और नॉट। So that means every hexadecimal number will be of 4 binary bits, हाँ है ना। तो अब ये 4 कितने से मिलकर बने हैं? 16 बिट। भाई 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके और 4 इसके, हाँ है ना, टोटल 16 बिट बन गया। तो अब इसको मैं क्या बोलूं? एक 8 बिट थे तो उसको ऑक्टेट बोलते थे, अब इसको क्या बोलूं? 1 फील्ड, ठीक है, 1 फील्ड। ये भी 16 बिट की सेकंड फील्ड है, ये थर्ड फील्ड है, फोर्थ फील्ड है, फिफ्थ फील्ड, सिक्स, सेवेंथ एंड एट, एंड 16 बिट के 8 फील्ड्स हैं, टोटल इज 128। कोई प्रॉब्लम किसी को? गुड। नाउ सी फ्रेंड्स, नंबर 1, every 16 bit is separated by a colon, not by a dot, right? They are separated by a colon but not by a dot. Number 1, in IPv4 why do we needed the classes?
IPv4 में हमें डिफरेंट क्लासेस क्यों दी गई थी? वेस्टेज को रोकने के लिए दिया गया था। क्लास फुल भी इसलिए था, क्लास लेस भी इसलिए, क्लास लेस इसलिए दिया गया था ताकि वी कैन रिड्यूस द वेस्टेज। यस और नो? गुड। तो नाउ friends, IPv4 IPv6 addresses are already so much that they will not end. Yes or no? So actually in IPv6 addresses there are no classes. There is no class in IPv4, oh sorry, in IPv6. In IPv6 there is no class, but in IPv4 there were 5 classes. Yes or no? Apart from that, अगर इसमें क्लास ही नहीं है तो क्या क्लासफुल क्लासलेस कोई चीज होगी यहाँ पर? नहीं हो सकती है। सबनेटिंग हम क्यों करते थे? ताकि मैं उसको रोक सकूं। तो अब यहाँ पर जब मुझे उसकी वेस्टेज ही नहीं है, मतलब इतने एड्रेस है कि वेस्टेज हद मार के झक मार के वेस्टेज कर लो तब भी खत्म नहीं होंगे, तो मतलब सीधी सी बात है कि वो तो कभी उसमें जरूरत ही नहीं है सबनेटिंग की, DLSM की। समझे ना? नहीं क्या तो अलग अलग नेटवर्क बना दे? ये 2001 है, 3001 से शुरू करते दूसरा बन गया। बताऊंगा बेटा अलग अलग नेटवर्क कैसे बनेंगे, बताऊंगा। एंड सी वन मोर थिंग, इट इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग कि उसके अंदर सारे के सारे न्यूमेरिक हो या सारे के सारे अल्फाबेटिक हो सकता है सारे न्यूमेरिक भी है, हो सकता है कि एवरीथिंग इज अल्फाबेटिक, हो सकता है कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ न्यूमेरल वर्सेस अल्फाबेटिक, व्हाटएवर। राइट और रॉन्ग? आप देखो जरा। हाँ मैं उसको बताऊंगा, रुक जा, आऊंगा धीरे धीरे। सबसे पहले इन दिस पर्टिकुलर एड्रेस क्या है, चुप करोगे फिर? थैंक यू सर की पानी की खाली बोतल पास कर दो फटाफट। हाँ भाई, तो यहाँ पर इसके इस पर्टिकुलर IPv6 एड्रेस में द फर्स्ट 4 फील्ड्स will make up a 64 bit. So the first 64 bits have been given, defines actually the network. ठीक है? Or it is not a mandatory, it defines network, it can define, may not. It depends on what is the network you have taken. And then the rest of the 64 bits, the rest of the 64 bits are called interface ID. Now why it is called interface ID? Interface ID it is called because the last 64 bits are made up of MAC address of the computer. Right? Now see, एक MAC address कितने बिट का होता है? और MAC address 16 बिट का कब से होने लग गया? 48 होता है बेटा। MAC address is a 48 bit hexadecimal और ये पूरा कितना है? 64 bit hexadecimal. So is that the same or there is a difference? Difference of how many bits? अब देखो फ्रेंड्स, द MAC एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर इज CCA478 BD2EC9। हाँ है ना? हाँ है ना? ये बीचों बीच आई हैव एडेड हियर इज FFFE। एट द वेरी मिड आई हैव एडेड FFFE। हाँ या ना? Now first of all, why I added it into the center exactly? Because from a MAC address the first 24 bits are given by OUI, organizationally unique identifier, and rest of the 24 bits are randomly assigned by the vendor. Yes or no? So friends, mid के ये जो 16 bit है, these 16 bits are called, इनको सेंटर में इसलिए जोड़ा गया है ताकि अभी भी OUI और randomly assigned by the vendors are different with each other. That is the reason that it's been added in the very center. Then the other thing, ये जो FFFE हमने बीचों बीच ऐड करा है ना, this is called EUI. EUI means equipment unique identifier.
ये देख लो यहाँ पर, ये रहा roughly 50 octillion addresses per person alive on earth today, 3.7 to 10 raised power 21 addresses per square inch of the earth. EUI 64 फॉर्मेट दिख रहा है, एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर. फ्रेंड्स, समवेयर इट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर, समवेयर इट इज कॉल्ड इक्विपमेंट यूनिक आइडेंटिफायर. अब जो आपने मानना है वो मान लो. राइट नाउ द थिंग इज नॉट इक्विपमेंट, इट इज इक्विप्ड यूनिक आइडेंटिफायर. ठीक है. नाउ एट द वेरी मिड जो आपने एफ 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 ई जोड़ा है वो सेंटर में क्यों ऐड करा, ये चीज क्लियर है? क्यों? ताकि OUI and the 24 bits assigned by the vendor are separate from each other still. So that's the reason it has been added at this center, ताकि उन दोनों को अलग अलग रख सकूं. कुछ नहीं, नोटेशन मेरे को कुछ तो रखनी थी. उन्होंने ये सोच के रखी कि इसको बीचों बीच रखेंगे. अगर मैं होता तो मैं शायद सबसे पहले रखता. अपनी अपनी इच्छा है. क्या है ये? क्या है ये? चल रही है. ओके, द अदर थिंग. अब ये चीज क्लियर है. नाउ फ्रेंड्स, वन मोर थिंग. इफ आई पुट द एड्रेसेस दिस वे, 2001 00AB 03F2 1300 0000 0000 0000 00C9 या 0009. ठीक है, दिस इज एन एड्रेस. हाउ कैन आई राइट दिस एड्रेस इन शॉर्ट? 2001 तो आएगा ही आएगा. अब लीडिंग जीरो, दीज टू जीरोज आर कमिंग एट द स्टार्टिंग, राइट और रॉन्ग? तो इन दिस पर्टिकुलर सेकेंड फील्ड these two zeros are leading zeros or not? So the leading zeros can be omitted. मैं सिंपल लिख सकता हूं AB. ये भी अभी लीडिंग जीरो है तो आई कैन राइट 3F2. ये दोनों तो लीडिंग जीरो नहीं है ना, तो आई विल राइट 1300 ओनली. ठीक है. अब ये पूरे का पूरा फील्ड जीरो है तो आई कैन रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल जीरो. ये भी पूरा जीरो है, आई कैन रिप्रेजेंट बाय द सिंगल जीरो. ये भी पूरा जीरो है, सिंगल जीरो कॉलन 9. गॉट इट? क्योंकि ये भी तो लीडिंग जीरो है ना तीनों. नाउ अब इसी एड्रेस को इफ आई वांट टू डू मोर, इसको और भी छोटा करना है मैंने, राइट? देन 2001 कॉलन AB कॉलन 3F2 कॉलन 1300. फ्रेंड्स, इफ कॉन्टिन्यूसली मोर देन वन फील्ड आर जीरो, यहां पर कॉन्टिन्यूसली 1 2 3 फील्ड्स आर जीरो कॉन्टिन्यूसली, यस और नो? So friends, if continuously three fields are zero, I will simply use a double colon. If continuously two fields are zero or more than two fields are zero, then I will simply use a double colon. Double colon 9 slash, oh sorry, बस इतना ही अभी. Double colon 9. क्लियर है? अब एक बात देखो जरा. Let the address be 2001 0000 0000 1300. अब इसको शॉर्ट में कैसे लिखो बताना. अब एक बात बताओ मुझे, अगर इन द सेम एड्रेस आई हैव यूज 2 टाइम्स डबल कॉलन, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि यहां पर लगातार दो फील्ड जीरो है, यहां पर लगातार दो फील्ड जीरो है? क्या पता लगेगा? नहीं. तो फ्रेंड्स, आई हैव टू राइट इट दिस वे, कॉलन 0 कॉलन 0 कॉलन 0 कॉलन 9. एक IPv6 एड्रेस में आई कैन यूज अ डबल कॉलन ओनली वंस. मोर देन वंस अ डबल कॉलन आई एक्चुअली कैन नॉट यूज. एम आई क्लियर? गुड. नाउ दिस इज हाउ वी कैन शॉर्टन द IP एड्रेस, राइट? अब देखो दोस्त, IP एड्रेस में बाय डिफॉल्ट, लेट्स से बाय डिफॉल्ट /64 इज द
प्रीफिक्स नोटेशन, जैसे वहां पर हम लिखते थे ना /24/8/16 कुछ भी, है ना, यहाँ पर भी हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मेरा है यहाँ पर मान लो कि सबनेट मास्क यहाँ पर नहीं डिफाइन किया जाता, द सबनेट मास्क कैन नॉट बी डिफाइंड इन IPv6, क्योंकि इतना बड़ा सबनेट मास्क कैसे लिखोगे, FFFF कॉलन FFFF कॉलन FFFF कॉलन FFFF, पागल हो गया। इतना बड़ा लिखने की जगह सिंपली वी डिनोटेड बाय द प्रीफिक्स नोटेशन, मतलब वो स्लैश लगा के उसको प्रीफिक्स ही बोलते हैं ना। तो फ्रेंड्स आई विल रिप्रेजेंट लेट से /48 48 लगा दूं या 64 लगाऊं, ये लो /64। तो अब इसकी नेटवर्क आईडी क्या बनेगी, 64, दैट मीन्स 16 + 16 + 16 + 16 हो गए 64। तो क्या बनेगा, 2001 कॉलन AB कॉलन 3F2 कॉलन 1300 डबल कॉलन /64। ये इसकी नेटवर्क आईडी बनी है नहीं बनी, कौन सा 9, अबे नेटवर्क आईडी में क्या होता है, 192.168 या 172.168.1.1, 172.168.1.9, 172.168.1.17, 172.168.254.253। अब ये भी /16 है, ये भी /16/16/16/16, तो मतलब 8 और 8 16, यही वाले तो बिट रहेंगे ना, बाकी तो सबके सब होस्ट बिट है, एंड होस्ट बिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 0/16, दिस विल बी द नेटवर्क आईडी और नॉट। तो वही तो मैंने कह रहा है, इसके बाद के तो सारे के सारे 0 है, तो सिंपली डबल कॉलन से रिप्रेजेंट कर दिया। समझ में आई बात मेरी, सभी को क्लियर है ना ये? हाँ, अपनी मर्जी से कैसे लिख दिया बेटा, देख 64, दैट मीन्स द 64 बिट्स आर रिजर्व फॉर द नेटवर्क। 16 16 दूनी 16 किया, 16 चौके /64 हो गया, तभी तो लिखा है बेटा, वो 9 तो लास्ट में आ रहा है। अब यहां पर 253 है, 17 है, 9 है, जो मर्जी है, लेकिन जब ये है ही /16 तो मतलब ऑब्वियसली इट विल वाइंड अप एट /16 और नॉट। 17 से लेकर 32 तक सबके सब 0 आएंगी बिट्स IPv4 में, तो यहां भी तो वही हो रहा है। इफ यू आर यूजिंग अ डबल कॉलन दैट मीन्स रेस्ट एवरीथिंग इज 0। नेटवर्क आईडी तो यही बनेगी। अच्छा, इसके साथ देखो मैं लिख देता हूं, मान लो /64 ही लिखूं, ये लो /64। अब इसकी नेटवर्क आईडी क्या बनेगी, 2001 डबल कॉलन, अब डबल कॉलन लगाऊं, कॉलन 0 कॉलन 1300 फिर डबल कॉलन /64। अब आएगा ये, दो डबल कॉलन कैसे यूज कर रहे थे आप। अब ये लो, इसी एड्रेस को अगर मैं बना दूं कितना, 2001, मर्जी है तेरी, लेकिन एक बात बता भाई, जो पहले आएगा उसी पे लगा लेगा ना, बाद का तो बाद में क्या हो रहा है मुझे क्या पता, जो चीज मुझे पहले दिखेगी मैं तो उस पे लगाऊंगा ना। भाई डिवाइस है तो डिवाइस तो ऐसे ही काम करेगा ना, कि जो चीज उसको पहले दिख रही है उसके लिए इट विल अप्लाई फर्स्ट, एंड जो चीज बाद में है उसको बाद में लगाएगा। हाँ है ना, सुधर जाओ। अब मान लो ये /64 नहीं है, लेट्स से इट इज /48, तो अब क्या बनेगा, 16 32 48, 2001 कॉलन 0 डबल कॉलन /48, ये बनेगा ना। तो इसको मैं, ये भी तो 0 है सबको, इसको ऐसे ना लिख दो, 2001 डबल कॉलन /48 लिख सकता हूँ ना शॉर्ट में। हाँ है ना, समझ में आई है ये चीज, गुड। नाउ लेट्स गो फर्दर, पढ़ लो क्या ये चीज समझ में आई है। 8 फील्ड्स होती है, हर एक फील्ड में 16 बिट्स होते हैं, तो एड्रेस स्पेस हैज बीन इंक्रीज्ड अ लॉट, हाँ है ना, and then it is more secure. Why it is more secure? Because friends please try to understand
कि in the IPv4, in IPv4, if you want to add security, right, in the IP address, then what do is we introduce a feature IPsec, मतलब Internet Protocol Security feature. Got it? And now here it is more secure because IPsec is already been implemented. ठीक है? In fact, I would say IPv6 IPsec is mandatory. Got it or not? IPsec यहाँ पर mandatory है, तो that feature is already running. यार see, try to look at this way. अब मुद्दे की बात पे आते हैं. ये सिक्योर है ज़्यादा क्योंकि यहाँ पर IPsec फीचर इज मैंडेटरी. IPsec फीचर से व्हाट हैपेंस इज थ्रू द IPsec whenever you are sending the data gets encrypted into some form, right? What type of encryption you are using, that depends on you, right? What type of encryption do you want, AES, ADS or 3DS, whatever. But here the thing is that it is more secure because of IPsec is mandatory here, and also it is faster than IPv4. अब बात आती है कि why it is faster. Because friends, number one, it do not use the subnet. नहीं, subnet mask कोई कारण नहीं है. हाँ, NetPat, you can apply pat. Friends, here the reason is because it doesn't uses the MAC address. MAC एड्रेस इसके IP के अंदर ही है ना, तो एक्चुअली मैक एड्रेस को तो ये यूज कर रहा है, बट बिकॉज ऑफ द मैक एड्रेस इट इज नॉट परफॉर्मिंग एनीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ आर्प. आर्प जैसे फीचर यहाँ पर है ही नहीं. ठीक है, तो नंबर वन इट इज फास्टर. नंबर टू, उसके अंदर क्या था, मैं उसका आपको हेडर साइज दिखाऊंगा. ठीक है, आई विल शो यू द हेडर साइज ऑफ दैट, एंड हेडर साइज से अ लॉट ऑफ थिंग्स विल बी क्लियर कि व्हाई इट इज फास्टर. बिकॉज कई सारी अनवांटेड सर्विसेज जो वहां पर थी किसमें, IPv4 में. ठीक है, जो जैसे दो तीन सर्विसेज थी, दो तीन सर्विसेज को मिलाकर एक ही सर्विस बना दिया ताकि उस पर कम लोड जुड़े. गॉट इट? नाउ टेक्निकली स्पीकिंग, एड्रेस स्पेस हैज बीन इंक्रीज, राइट. भाई वहां पर तो होता है कितना, 2^32. यहां पर कितना है, 2^128. दैट मीन्स 32 का भी 4 से गुणा कर दो, है ना. तो मतलब 4 गुना बढ़ गया ना ये. The address size has been increased 4 times or not? IPv6 addresses are 4 times as large, but the header length is only twice as big. IPv4 की header length कितनी होती है, याद है? चल 20 bytes. और IPv6 की कितनी होती है फिर, 40 bytes. एड्रेसेस 4 गुना बढ़ गए हैं, मतलब बहुत सारे एड्रेसेस बढ़ गए ना, बट स्टिल the header size has been increased only twice, and that also not complicated, so that runs very smooth and fast. Got it? अच्छा, अब आगे चलो. IPsec is mandatory, and friends here one more thing, very good thing, कि rather than using ARP, it uses is NDP. NDP मतलब Neighbor Discovery Protocol. That I'm supposed to tell you. I'll tell you, but first let me get it done. यहाँ पर दोस्त देखो, एक IPv4 के अंदर, IPv4 के अंदर if you want to assign an IP address on interface of a router, what are the ways do you have? What ways do we have to connect them? हाँ 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 बोलो. अबे जब सही बोलते हो तो तुम्हें क्यों शर्म आती है बोलने में? मेरे को समझ नहीं आया. आंसर भी सही बोल दिया, मैंने कहा बोलो जोर से, फिर शर्म आ रही है बोलने में. बोलो. नंबर वन, आई कैन पुट द IP एड्रेस मैन्युअली. यस और नो? नंबर टू, DHCP से दे सकता हूँ IP. हाँ है ना? DHCP आप लैब में कर चुके हो ना? अब DHCP के थ्रू यू कैन गिव द IP एड्रेस. और कोई तीसरा तरीका है क्या? चलो वो तो है ही, है ना. लेकिन राउटर के इंटरफेस पे तो नहीं दे सकते ना दोस्तों, पिप्पा से नहीं दे सकते ना. अब देखो, सबसे पहले ऑन दिस राउटर इफ यू वांट टू इंप्लीमेंट द IPv6, तो यू हैव टू राइट द कमांड IPv6 unicast routing. डन है. नाउ
इंटरफेस F00 पर IPv6 एड्रेस लेट इट बी 10:1:1:1/48. इज इट अ वैलिड IPv6 एड्रेस और नॉट? भाई इसका मतलब क्या है, देखो 0001:0001:0001::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 :ँ है ना, यही बनता है ना एड्रेस एक्चुअली. ओके, नाउ फ्रेंड्स लेट मी गिव हियर नो शट डाउन. दे दिया मैंने एड्रेस, दे दिया ना. नाउ जस्ट चेक इट अप. Do show IPv6 interface brief. I will not write IP interface brief, but I will write IPv6 interface brief. भाई यही IP एड्रेस दिया था मैंने, लेकिन ये IP एड्रेस कौन सा मिल गया इसको? Do show interface F00. इंटरफेस F00 का मैक एड्रेस ये है ना. लो CA01 8 हो गया, ये CE0 CE00008, तो ये सिर्फ 8 हो गया. बीचों बीच FFFE ऐड हुआ है नहीं हुआ? सी दिस पार्ट, yes or no? Friends, now what is actually happening is that the interface will take an address for sure, but apart from taking its own address, whichever the address you have given, apart from that address, it will also assign itself an IP address. ये अपने आप को भी अपने आप ही एक IPv6 एड्रेस असाइन कर लेगा on the basis of its MAC address, and that will always start from FE80, and these type of addresses are called link local. ठीक है, जो भी एड्रेसेस FE80 से स्टार्ट होते हैं ना, दोज आर कॉल्ड लिंक लोकल एड्रेसेस. अब वो क्या होता है मैं बताऊंगा अभी, बस अभी के लिए इतना देखना कि वो लिंक लोकल होता है. एम आई क्लियर? चल इनसाइड लोकल को कहाँ कंपेयर कर रहा है. अब देखो दूसरा तरीका, इंटरफेस सीरियल 1/0, सॉरी इंटरफेस सीरियल 1/0 IPv6 एड्रेस क्वेश्चन मार्क. भैया या तो मैं जनरल प्रीफिक्स नेम दे दूं, मतलब कि मैं उस पर आईपी एड्रेस दे रहा हूं, हाँ है ना, या फिर मैं उस पर लिंक लोकल एड्रेस डिफाइन कर रहा हूं, हाँ है ना. लिंक लोकल एड्रेस बाय डिफॉल्ट तो अपने आप ही ले लेता है ना, और यू आर गिविंग एन IPv6 एड्रेस दैट यू एक्चुअली वांट, जैसे मैंने यहां पर दिया था ये 10.1.1.1. और द वन मोर थिंग इज ऑटो कन्फिग, यस और नो. अब देखो जरा, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, सॉरी डू शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ. दो सीरियल 10 को अपने आप एक मैक एड्रेस मिल गया, IPv6 एड्रेस मिल गया. क्या ये IPv6 एड्रेस सेम नहीं है ना? दैट मीन्स दोस्त, किसी सीरियल इंटरफेस का क्या कोई मैक एड्रेस होता है? नहीं होता, लेकिन तब भी तो इसको एक IPv6 एड्रेस मिल गया ना, तो उसके लिए इसने F00 इंटरफेस का मैक एड्रेस लिया. समझ में आई बात? F00 का जो मैक एड्रेस होता है ना, वो उस मैक एड्रेस को अपना मैक एड्रेस समझकर उसके बेसिस पर इट टेक्स इज एन आईपी एड्रेस, एन IPv6 एड्रेस ऑटोमेटिकली. क्लियर और नॉट? हाँ, दोनों साइड सीरियल होगा तो दो सीरियल्स को भी दोस्त वही F00 वाला ही मिलेगा, वही वाला मिलता है. अब देखो ऐसा क्यों होता है. द क्वेश्चन कम्स अप इज कि आई एम सेइंग दैट even the fast Ethernet, every interface will get an IP address automatically, right? Apart from the IPv6 address that I have assigned, it will get one more IP address on its own. है ना? नहीं समझ में आ रहा? भाई देखो, एक IPv6 एड्रेस तो इसको मैंने दिया, लेकिन जो IPv6 एड्रेस मैंने दिया था उसके अलावा ये खुद भी तो एक IPv6 एड्रेस ले रहा है ना, लिंक लोकल वाला. वो क्यों ले रहा है, उसका मुझे फायदा क्या है समझो. रेडी? मैंने क्या बोला, यहाँ पर आर नहीं चलती है ना, लेकिन यहाँ पर क्या चलता है, नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल. नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल में क्या होगा कि यहाँ पर जो नीचे कंप्यूटर है ना,
स्विच के नीचे जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर विल ऑटोमेटिकली डिस्कवर इट्स नेबर, कि F00 ही है ना मेरा नेबर, तो जिस पे IPv6 एड्रेस है, ठीक है, तो F00 का जो भी लिंक लोकल एड्रेस है ना, वो उसको लर्न कर लेगा। तो एक्चुअली इन आर्क व्हाट एग्जैक्टली वाज हैपनिंग, कि राउटर से ये स्विच है और यहां पर ये कंप्यूटर है, दिस कंप्यूटर डजंट नो द डेस्टिनेशन मैक, दैट्स व्हाई इट वाज पुटिंग द FFFF, और फिर डेटा को होल्ड कर रहा था ना, याद है कुछ? इट वाज एक्चुअली होल्डिंग द डेटा बिकॉज इट डिड नॉट नो द मैक एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन, राइट? राइट। तो राउटर के पास भेजेगा, फिर राउटर अपने इंटरफेस का मैक एड्रेस रिलीज करेगा। बट हियर इन IPv6 द कंप्यूटर will already auto configure, will automatically be able to know the link local address of this interface. Got it or not? उसको पता लग गया ना ऑटो कॉन्फ़िगरेशन से। राउटर 1 will automatically configure the IP address here. फिर कहता है मैं सोता नहीं हूँ, जाग रहा होता हूँ। कौन सा सिस्टम? उसको भी दोस्त ऑटो कॉन्फ़िग है, वो ऑटोमेटिकली नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल इज ऑलरेडी रनिंग हियर। नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल इज नॉट इज रनिंग हियर इंस्टेड ऑफ आर्प। आर्प नहीं चलता यहां पर, नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल चलता है, तो वो नेबर को अपने आप ही डिस्कवर करता है, ये उसकी फीचर है। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? Yes, sir. अब एक काम करता हूं मैं, R1 और R2 पे भाई इसको चला दो यार, वैसी गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा। R1 और R3, R1 और R2, भाई आप में से जिस को ठंड लगती है आप लोग उधर बैठ जाया करो कोने में। हाँ, और यार प्लीज यार ये पागलों वाली बातों में मेरा प्लीज। अब मैं इन दोनों राउटर्स पे कोई राउटिंग प्रोटोकॉल चला रहा हूँ, राउटिंग प्रोटोकॉल जो भी मैं चला रहा हूँ, यू आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट। वो राउटिंग प्रोटोकॉल मैं खुद चला रहा हूँ, मुझे पता है कमांड मैं चला रहा हूँ, मैं आपको बस कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ इसलिए चला रहा हूँ, ठीक है? हाँ जी देख लो, मैंने दोस्त यहाँ पर R1 और R2 पे I have applied is rip, ठीक है? तो अब देखो, debug IPv6 rip, now just try to observe।
देख लो, what it's doing is that it is sending a multicast update on serial 10, right? उसमें source it is using is FE80 blah blah blah. Now see, the source address is that of the link local or not? FE80 serial 10 से if it is sending, first of all undebug all, if it is sending from serial 10, then serial 10 का IPv6 address is 12111 or not? भाई यहाँ पर मैंने आईपी एड्रेस 12 मैंने दिया है 12:1:1:1/1/64, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या दिया है 12:112/64। तो इस सीरियल 10 का IPv6 एड्रेस ये है, तो इसको सोर्स, अगर इसका IPv6 एड्रेस ये है 12:1:1:1, तो इसको सोर्स 12:1:1:1 लगा के भेजना चाहिए, लेकिन ये सोर्स क्या लगा के भेज रहा है? इस राउटर को अपना सोर्स आईपी एड्रेस 12:1:1:1 लगा करके भेजना चाहिए, लेकिन ये लगा करके भेज रहा है FE80:C801, दैट मीन्स इट्स लिंक लोकल एड्रेस, एंड द डेस्टिनेशन इज अगेन FF02:9, दैट इज द मल्टीकास्ट एड्रेस इट यूजेस फॉर RIP. Port number, RIP uses the port number 520 for IPv4, but for IPv6 it uses the port number 520. So the source port is 521 and destination port is 521. That's it. And even if it is sending a multicast update on F00, then also the source is that of link local and destination is that of the multicast address of RIP. And even if you see here, response received from this serial 10 for ABC. Serial 10 पे if he has received, then obviously he has received from this interface. So rather than showing that response received from 12:1:1:2, it is saying that to show IPv6 interface brief. From this is the link local address assigned on serial 10, and you can see here that it has received it from here. So please compare this address with this address. That means the router 1 actually doesn't know that he has received from 12:1:1:2, but according to router 1 I have just received it from the link local of my neighbor, which is this. You can compare it. Both the addresses are same. So that is what I actually wanted to tell you, that this is how, why I need the, this is why I need the uh, this is why NDP is running. This is because they are actually communicating on the basis of NDP, Neighbor Discovery Protocol. Even if you write show IPv6 route, for RIP if I was writing show IP route in a version 4, then it was saying that it is getting received from 12.1.1.2, the next IP. Next of IP it was learning automatically, but here it is actually learning that this particular network I am receiving via this IP. That means the link local of my neighbor. That is what it has learned. This is what is called neighbor discovery protocol. I hope it's clear. हाँ क्या भाई, क्योंकि एनडीपी के थ्रू आप जो रिप प्रोटोकॉल चला रहे हो, रिप प्रोटोकॉल में वो सोर्स एड्रेस अपना 12:1:1:2 की जगह एनडीपी का लगा के भेजता है, जिससे इसको ऑलरेडी अपना डेस्टिनेशन पता लग चुका है। राउटर 1 को ऑलरेडी अपना डेस्टिनेशन पता लग चुका है 20 के नेटवर्क पे आने के लिए। भाई वहां पर आर्प चलता था, तो क्या आर्प चलने का मतलब ये था कि आपको रिप चाहिए ही नहीं? तो यहाँ पर क्या कर रहा है फिर राउटिंग प्रोटोकॉल?
डिफरेंट नेटवर्क्स को कम्युनिकेट तो अभी भी दोस्त राउटिंग प्रोटोकॉल ही करा रहा है। मैं अगर अपडेट सेंड कर रहा हूँ सोर्स एड्रेस अपना नेबर डिस्कवरी का लेकर, तो वो कर तो इसीलिए पा रहा हूँ क्योंकि मेरा वहां पर रिप एनेबल्ड है, क्योंकि मेरे को डेस्टिनेशन मिल गया है, क्योंकि मुझे डेस्टिनेशन मिल रहा है FF02:9। जब तक मुझे कोई डेस्टिनेशन कोई मल्टीकास्ट एड्रेस नहीं मिलेगा तब तक मैं कैसे जाऊंगा? भाई ये FF02:9 ये एक मल्टीकास्ट एड्रेस है। रेप वर्जन 2 का मल्टीकास्ट एड्रेस होता था 224.0.0.9, तो वो अपने आप उसको डेस्टिनेशन लगा के भेजता था। यहां पर क्या कर रहे हैं, डेस्टिनेशन इसी को लगा के भेज रहे हैं। वो एनडीपी काम तो तब करेगा ना जब मेरे को पता लगेगा कि मेरे को कहां जाना है। सिर्फ एनडीपी चलाने से राउटिंग प्रोटोकॉल चलाने की जरूरत ही नहीं है, ये क्या बात बनी? आर्प की जगह एनडीपी यूज होता है, लेकिन इसके अंदर मुझे पैकेट मेरे ड्रॉप नहीं होते जैसे आर्प में होते थे। वो अपने भाई फर्स्ट भाई एक देख मेरी बात सुन भाई, मैं तेरे को कितनी बार एक ही बात बोलूं, एक बंदा क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं अगर उसका आंसर कर रहा हूं तो बीच में मैं तेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकता भाई, रुक जाएगा 2 मिनट प्लीज। मैं ये टॉपिक वापस पढ़ा रहा हूँ अपनी साइड से, और मैं अब की बार बोलता रहूंगा, मैं आप लोगों से कंफर्मेशन की वेट तो करूंगा नहीं, क्योंकि वैसे ही आप लोगों ने नहीं देनी कंफर्मेशन, तो आई रियली डोंट केयर, आई एक्चुअली डोंट केयर देम। अगर पिछली चीजें याद हो तो यहाँ से अगर मैं कम्युनिकेशन करा रहा हूँ, दिस इज द डेस्क सोर्स आईपी 10.2 computer which wants to go to this computer 30.2. So if it wants to go to 30.2, then source IP is 10.2, destination IP is 30.2, source MAC address is 0A and destination MAC address I don't know. इसीलिए I will be using first of all 00 और बाद में मैं यहाँ पर लगाऊंगा FFFFFFFFFFF। लेकिन क्योंकि मुझे डेस्टिनेशन का MAC एड्रेस नहीं मालूम है, that's the reason that I will actually hold the data here till the time I don't know the MAC address of the device. Then I will go to the router and then the router will see that I can actually reach to the network 30.2 via the routing protocol, whichever the routing protocol we have applied. But then the router 1 will see that yes, I can reach there, but what is the point to go there, because the data is on hold. I need to relieve the data from him. So what the router 1 will do, router 1 will say source IP is 30.2, destination IP is 10.2. Source MAC address is AB, the MAC address of its own gateway, and the destination is 0A. Then he will send. Now he has got the message, so he will say source IP, destination IP, source MAC and destination MAC, then the data which was on hold, this data will be relieved towards the router. This is how this was the reason that in first go the packet was on hold. That's why this was the work of ARP. ARP ऐसे काम करता था, इस चीज को मैं 5-7 बार बता चुका हूँ, 10 बार बोल चुका हूँ कि वीडियो देख लो। लेकिन अगर अभी भी चीजें समझ में नहीं आती है, मेरे को वापस 0 लेवल से बताना है, लेट इट बी दिस वे। अब IPv6 के अंदर क्या हो रहा है, यहां पर डेटा वॉज ऑन होल्ड बिकॉज आई डू नॉट नो द मैक एड्रेस, दैट्स वाई। बट हियर in IPv6 what will happen, router 1, router 2, router 3, here the computer already will come to know the MAC address of the IPv6 address of this interface. This interface को IPv6 address you have given is 10.1.1/64, but apart from that it will take a link local address on the basis of its MAC address. The link local address which will start from FE80 blah blah whatever. Then this particular router, this particular computer will come to know the through the neighbor discovery protocol. इस कंप्यूटर को पता लगेगा कि F00 का IP एड्रेस is this FE80. It will never ever discover 10.1.1 because this is what you have given manually, and this is what is automatically it is, so it will work on that basis.
तो इस कंप्यूटर को अपने गेटवे का आईपी एड्रेस पता लग चुका है ऑन द बिकॉज ऑफ नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल. दिस इज व्हाई द कंप्यूटर विल से द सोर्स आईपी इज 10:1. डेस्टिनेशन आईपी इज 30:2. अब सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक तो यहाँ पर लगेगा नहीं, बल्कि इसको बस इतना पता है कि मुझे यहाँ पहुँचना है FE80 ब्ला 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 के पास. ये राउटर 1 के पास पहुंचेगा एंड राउटर 1 को पता है कि मेरे को यहाँ से यहाँ जाने के लिए वेन एवर द राउटर्स आर सेंडिंग द अपडेट्स. तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर EIGRP मेरा इम्प्लीमेंट करने का कारण था कि सोर्स को ये एज अ 12.1.12:1:1 नहीं ले रहा, बल्कि ये ले रहा है FE80 जो कि इसका लिंक लोकल एड्रेस है. तो अपने लिंक लोकल एड्रेस को लेकर और फिर सामने डेस्टिनेशन इसको लगा करके एडवर्टाइज करेगा. तो इवन इफ इट हैज अ सोर्स आईपी that does not and the NDP is already running, that does not mean that I don't need a routing protocol to communicate. कि राउटर 1 से 2 तक उसको अपने पास IPv6 एड्रेस मिल गया, अपने आप नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल के थ्रू सेंड भी कर देगा. तो राउटिंग प्रोटोकॉल क्यों लगा रहे हो? ये चीज गलत है. Because till the time it don't have an it don't have a routing protocol, it doesn't know, it know that this is the source from where I need to send. बट जब तक मुझे डेस्टिनेशन नहीं पता कि मुझे कहाँ सेंड करना है, आई विल नॉट बी एबल टू सेंड एनीथिंग. दैट्स द रीजन दैट आई नीड द डेस्टिनेशन एड्रेस एज वेल, एंड फॉर दैट आई नीड अ राउटिंग प्रोटोकॉल. एंड देन दिस इज द सोर्स आईपी. अब ये चीज मैंने यहाँ पर रिप लगाने का मेरा कारण ये था, सिर्फ आपको ये बता पाऊँ मैं कि जब भी वो सोर्स आईपी हमेशा अपने लिंक लोकल को लगा करके एडवर्टाइज करता है, और इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि 12:1:1:1 की कोई वैल्यू है ही नहीं, कोई औकात है ही नहीं. ऐसा सोचना गलत है. अब अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो. भाई इसको 12 के थ्रू ही तो जब यहाँ पर वो IPv6 एड्रेस के थ्रू फ्लो कर रहा है, ये इसका सीरियल 10 है. ऑटो कन्फिग करेगा तो सीरियल 10 का, F00 का, सीरियल 20 का, सीरियल 30 का, सीरियल 40 का, सीरियल 50 का, सबका IPv6 एड्रेस एक ही हो जाएगा. तो प्रॉब्लम आपको होगी, मेरे को नहीं होगी. तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन भी मुझसे इशारों में पूछ लिया करो, अगर जवाब इशारों में देने होता है तो कोई फायदा नहीं. अगर अभी भी कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं इसको इस तरह से मानूंगा कि आप लोगों को समझ में आ चुका है कि NDP क्या होता है. ये चीज हो चुकी है. IPv6 एड्रेस में द न्यू थिंग इज दैट it is represented by hexadecimal number. There is no network mask, only the prefix list that I told you. Classless addressing routing, यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है. यहाँ पर क्योंकि क्लासलेस जैसी कोई चीज़ है ही नहीं एक्चुअली. The header is always 40 byte long. There is no broadcast. IPv6 के अंदर broadcast कभी भी नहीं होता. And the services like R, IGMP और ICMP, इन सबको मिलाकर एक ही चीज बन गई है, ICMP वर्जन 6 टेक्स द जॉब. ये उसका हेडर स्पेस है. IPv4 के हेडर में दिस पर्टिकुलर कलर हैज बीन ड्रॉप्ड. हेडर लेंथ यहाँ पर नहीं है, आइडेंटिफायर यहाँ पर नहीं है, फ्लैग, फ्रैगमेंट ऑफसेट, हेडर चेकसम, ऑप्शंस, पैडिंग, ये सब चीज IPv6 के हेडर में नहीं है. तो a lot of things have been removed. 1 2 3 4 5 6 7, total 7 things have been removed. वर्जन, यहाँ पर भी वर्जन है. यहाँ पर this this color, blue color is called, that name or position has been changed. Type of service has become traffic class. Total length has become payload length. ठीक है. पेलोड लेंथ मींस कि मेरे को पिछले वाले लेयर से, सॉरी दिस, हाँ, टोटल लेंथ इज कॉल्ड पेलोड लेंथ, जो मुझे पीछे से मिल रहा है.
जो मुझे नेटवर्क लेयर से वट एवर आई एम रिसीविंग, और ट्रांसपोर्ट लेयर से वट एवर आई एम रिसीविंग, एंड देन द अपर लेयर प्रोटोकॉल, दैट मीन्स लेयर 4 का जो प्रोटोकॉल जुड़ा है वो यहाँ पर है, नेक्स्ट हेडर लेयर 4, एंड देन हॉप लिमिट, टाइम टू लिव हैज बिकम हॉप लिमिट, क्लियर है। एंड देन फ्लो लेबल, फ्लो लेबल में क्या है कि विच टाइप ऑफ ट्रैफिक आई एम गिविंग मोर प्रायोरिटी, फॉर एग्जांपल यूडीपी ट्रैफिक विल बी गिवन मोर प्रायोरिटी ओवर टीसीपी ट्रैफिक, व्हाई? द रीजन इज द यूडीपी ट्रैफिक इज सेंसिटिव ट्रैफिक, बिकॉज उस पर वॉइस है, वीडियो है, वो लाइव है, तो विच एवर द नेटवर्क इज लाइव, दैट नेटवर्क हैज मोर सेंसिटिविटी ओवर द other networks, because these things are going live. Because if I call you and I say meet me after 10 minutes and you get the message after 20 minutes, then you will come after 10 minutes, that means half an hour I'm just waiting there like stupid, which is obviously not a good idea. So that's the thing. Now इसीलिए यूडीपी ट्रैफिक शुड बी गिवन एज सून एज पॉसिबल। यूडीपी ट्रैफिक में द लेटेंसी विल नॉट बी टॉलरेटेड एट ऑल। तो अब इसके यही सारी चीज़ें हैं, इसको पढ़ना चाहो पढ़ लेना, पढ़ लोगे तो ज़्यादा समझदारी रहेगी। लीडिंग जीरोस कैन बी ओमिटेड, सक्सेसिव फील्ड ऑफ जीरो कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डुअल कॉलन, एंड डबल कॉलन cannot be used more than once in the IPv6 एड्रेस या फिर IPv6 का नेटवर्क आईडी। ये चीज़ बता चुका हूँ कि इसको छोटा कैसे करना है। यहाँ पर लीडिंग जीरोज हैं, ये सक्सेसिव फील्ड्स को जीरो से रिप्रेजेंट कर दिया, लगातार 3 है, लीडिंग जीरोज को मैंने हटा दिया, ओमिट कर दिया, सेम थिंग, दैट्स इट। देन इसके अंदर टोटल 3 टाइप के ट्रैफिक होते हैं, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड एनीकास्ट। यूनिकास्ट मतलब आई एम जस्ट सेंडिंग 1 to 1, that means delivery to a single interface, from a single interface I am sending and it is actually getting received by a single unit, so that's why it is called a unicast. And then multicast means मैंने एक इंटरफेस से सेंड करा है और वहां से सेंड करने के वजह से मल्टीपल हैव बीन एबल टू रिसीव, डिलीवरी टू ऑल इंटरफेसेस इन द ग्रुप, एड्रेस टू अ ग्रुप ऑफ इंटरफेसेस। मैंने एक जगह से सेंड करा है मल्टीपल लोगों के लिए, दैट मीन्स इन द कंप्लीट नेटवर्क इफ आई एम सेंडिंग, द कंप्लीट नेटवर्क कैन रिसीव, बट द थिंग इज एनी कास्ट। नंबर 1, ब्रॉडकास्ट यू कैनॉट परफॉर्म हियर द ब्रॉडकास्ट, बट यू कैन परफॉर्म इज एनी कास्ट। नाउ व्हाट इज एनी कास्ट? कि मैं राउटर 1 2 3 4 5 6, अब एनी कास्ट के अंदर क्या होगा कि मेरे पास 2 रास्ते हैं, इस रास्ते से मैं इन दोनों में से कौन सा रास्ता चूज करूंगा, दैट डिपेंड्स ऑन माय राउटिंग डिस्टेंस। नाउ व्हाट इज राउटिंग डिस्टेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर यहाँ पर 2 अलग अलग प्रोटोकॉल चल रहे हैं तो राउटिंग डिस्टेंस वुड बी कैलकुलेटेड, राउटेड डिस्टेंस इज एक्चुअली द एडी वैल्यू। और अगर यहाँ पर सेम प्रोटोकॉल चल रहे हैं तो फिर आई विल कैलकुलेट द मेट्रिक वैल्यू। तो विच एवर द पाथ is providing is nearest to me, nearest is defined as being closest in terms of routing distance, that will be the path that I will actually choose। मैं सिर्फ अपने नियरेस्ट वाले को दूंगा, मेरा नियरेस्ट वाला उसको आगे फॉरवर्ड करेगा एंड करते करते वो इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंचेगी, या जहां पहुंचनी है वहां पहुंचेगी। I will just give it to my neighbor, my nearest will relay it further, and then that nearest will relay it further, that's the way it will keep on going and finally it will reach the destination। Now एनीकास्ट कुछ नहीं है, शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए आप सिर्फ डिलीवरी टू एग्जैक्टली 1 मेंबर ऑफ द ग्रुप, क्लोजेस्ट मेंबर, एंड क्लोजेस्ट इन टर्म्स ऑफ राउटिंग डिस्टेंस और मेट्रिक वैल्यू, एनीथिंग इट कुड बी। और मल्टीकास्ट और कुछ नहीं है, सिर्फ यूनिकास्ट और एनीकास्ट इज नथिंग बट जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिकास्ट एंड
multicast. Okay. And whenever you want to assign an IPv6 address, you can assign it three way. Number one, auto configuration. That means when I write the command IPv6 address auto config, auto config is called stateless. Why it is called a stateless? Because that is only and only अगर मैं इन दो राउटर्स के बीच में R1, R2, R3 अगर मैं इन दोनों राउटर्स पे ऑटो कन्फिग चलाता हूं तो ये दोनों सिर्फ आपस में एक दूसरे से ही कम्युनिकेट करेंगे. दैट इंफॉर्मेशन विल नॉट बी गिवन हियर. वो वाली इंफॉर्मेशन आगे कभी नहीं दी जाएगी. ये सिर्फ इन्हीं दोनों के लिए आपस में काम कर रहा है और कहीं नहीं. ऑटो कन्फिग. एम आई क्लियर? वो सिर्फ इन्हीं दोनों तक स्पेसिफाइड है. द अदर वे इज DHCP वर्जन 6 थ्रू. दैट मीन्स के क्लास stateless. Stateless मतलब they cannot communicate with others. They just can communicate with each other. That's all. इससे आगे वो नहीं जा सकते. But if I'm assigning it through DHCP, तो DHCP के through if I'm assigning, that means this router and this router they can communicate for sure or not, because they both have got it from the DHCP. And then the third thing is, हाँ भाई, ये मेरे पास दो तरीके. DHCP version 6 से if I give, that is called stateful because they all can communicate with each other for sure. And the third we have is statically. Statically means जैसे मैंने manually IP address दिया, IPv6 address 10:1:1/64. देखे दिखाया था मैंने अभी, फिर से दिखाऊं? क्या राउटर टू राउटर DHCP कॉन्फ़िगर मतलब दिस इज कॉल्ड असाइनिंग एन IP एड्रेस स्टैटिकली. या फिर IPv6 एड्रेस अगर आपको किसी उससे देना है डोमेन से DHCP से, तो यहाँ पर आप DHCP का नाम लिख दोगे. या फिर अगर आपको ऑटो कन्फिग करना है तो आप ऑटो कन्फिग कर दोगे, जिससे सिर्फ उसको स्टेटलेस मिलेगा. मतलब दे बोथ कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर बट नॉट विद द कंप्लीट नेटवर्क. एंड देन देर आर फर्दर डिवाइडेड इनटू यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड एनीकास्ट. और ये मल्टीकास्ट और एनीकास्ट के बारे में आप RFC पढ़ सकते हो अगर पढ़ना चाहो तो. बट अबाउट यूनिकास्ट, यूनिकास्ट में वापस वही प्राइवेट ग्लोबल. प्राइवेट मतलब दे आर for that, no, not obviously free of cost, but private means that they are only for the local network, right? And then the global, that means for the public network. And then loopback. Loopback, I'm not talking about the loopback of the router. Loopback, I'm talking about the loopback in IPv4. 127 was reserved for loopback. Here also something will be reserved for loopback. And then unspecified. Unspecified means वहां पर unspecified network कौन सा था? 0.0.0.0, and here it would be absolutely simply by double colon. So if you want to implement RIP default routing here, double colon /0 will be the address for that unspecified. And then see here, link local. Link local is start from FE8 goes till FEB. अब ये कैसे हो रहा है इस चीज को देख लो. FE8, FE9, FE10 मतलब A, FE11 मतलब B. FE8 से FEB तक ही है. अब इनको जरा समराइज कर लो. समराइजेशन आई होप आप लोगों को याद है. F को अगर मैं करूंगा तो क्या बनेगा? E को बनेगा, 8 को बनेगा 1000.
यहां पर भी एफ और ई तो यही बनेंगे, लेकिन यहां पर 9 क्या बनेगा, 1001, 10 विल बी 1010 एंड 11 विल बी 1011। नाउ 4 + 4 8 + 2 10, यहां तक कॉन्टिन्यूटी मेंटेन्ड है। तो ये कितना हो गया, एफ ई। अब यहां पर ये 8 वाला तो कॉमन है ना, तो एफ ई 8 डबल कॉलन स्लैश 4 4 8 2 10। दिस इज इट, दिस इज द समराइज्ड एड्रेस फॉर दैट। आई होप इट्स क्लियर। किसी को डाउट है तो पूछ लो। समराइजेशन याद है? एंड देन लिंक लोकल समझ में आ गया अब किस लिए होता है। एंड अदर थिंग इज साइट लोकल। अब साइट लोकल क्या है कि विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन यू कैन गिव दिस रेंज। एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर अगर आपको रेंज देनी है, दैट मीन्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल द डिवाइसेज, organization has these two parts. Inside this complete part, inside this complete you are running IPv6, inside here you are running IPv6, and then completely IPv6 है internal, है ना? तो this is called site local. यहां पर भी internally you are using is site local. And then global IP address मतलब global unicast. Global unicast मतलब कि it will always start from global unicast means it is a public IP. So the range of that is from 2000 to E000. But still, up till now, all the IPv6 addresses are starting from 2001, and there is a proper reason for that. The reason for that is अगर आप 2001 से भी IPv6 एड्रेसेस को स्टार्ट करोगे, फर्स्ट फील्ड को 2001 फिक्स रखोगे, तब भी इतने IPv6 एड्रेसेस हैं कि दे आर नॉट अबाउट, दे विल नॉट गेट ओवर। दैट्स द रीजन। अब IPv6 में हमेशा एक चीज बहुत अच्छी है, IPv4 एड्रेस किसको मिला हुआ है, वो दुनिया के कौन से कोने में है, किसका है, किसी को नहीं पता। बट इन IPv6 we know that. How? It will start from 2001 for sure, and then it will be registry prefix. Registry prefix मतलब /23, मतलब ये पहले 16 बिट हो गए, 17 से 23 तक will be registry prefix, which means registry prefix is telling you that which country it belongs to. And then ISP from 24 to 32 it would be ISP bits. Now the ISP bit means that which actually is the particular region you are provided with in the country, right? And then subscriber, that means that region means north, east, west, south, and then subscriber means ke which state or which part, and then your subnet, that means which exactly is the location, right? And then your interface ID, that means rest of the 64 bit, which is the MAC address of your computer. तो एक आईपी एड्रेस से IPv6 एड्रेस को देखकर कोई बंदा बता सकता है, समझदार बंदा, कि ये IPv6 एड्रेस दुनिया के किस कोने में और कौन सा कंप्यूटर है। दिस इज द ग्रेट थिंग अबाउट एन IPv6 एड्रेस। आई होप इट्स क्लियर। वही चीज यहां पर बताई गई है, वही चीज बताई हुई है कि एलोकेशन कैसे कैसे होती है, पढ़ना चाहो पढ़ लेना। लूप बैक के लिए सिर्फ एक ही एड्रेस रिजर्व्ड है, दिस फॉर द लोकल टेस्टिंग ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। और अनस्पेसिफाइड के अंदर ऑल जीरोस, या फिर ऐसे लिख लो, सिंपल ये लिख लो। और ये स्पेशल एड्रेसेस यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, क्योंकि ये फिर आपको माइग्रेशन वगैरह के लिए यूज होते हैं, या फिर आपका V4 को V6 में मैप करने के लिए यूज होते हैं, वो भी हम नहीं करेंगे, करते। वही चीज है, इसको पढ़ लेना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। All the computer uses the multicast address FF02:1, or all the routers uses the multicast address FF02:2। कंप्यूटर्स और राउटर्स दोनों के लिए मल्टीकास्ट एड्रेस अलग अलग रखा गया है। जो रिप था, रिप काम करता था 224009 पे, तो रिप नेक्स्ट जनरेशन काम करता है FF02:9 पे। OSPF काम करता था 224005 और 6 पे, यहाँ देख लो। EIGRP काम करता था 224010 पे, यहाँ देख लो। बस एनीकास्ट के बारे में वही है।
डुअल स्टैक क्या होता है? टनलिंग और ट्रांसलेशन तो रहने दो अभी। डुअल स्टैक क्या होता है कि इस राउटर 1 से इस राउटर 2 तक, यहां पर यू हैव गिवन द आईपी 12.1.1.1, 12.1.1.2, और यहां पर इस इंटरफेस F00 पर आपने दे रखा है 1.1.1.1, यहां आपने दे रखा है 2.2.2.2। तो अब R1 और R2 के बीच में यू कैन रन एनी राउटिंग प्रोटोकॉल। जस्ट नेम विच राउटिंग प्रोटोकॉल? EIGRP 100। ठीक है। अब सेम इंटरफेस पे दिस आईपी ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड यू कैन गिव वन मोर आईपी 1:1:, मतलब IPv6 वाली दे दोगे। यहाँ पर भी 12:1:1, डबल: 1, यहाँ पर 12:2, यहाँ पर 2:2। तो इनको आईपीज मिल गई, IPv4 वाली भी, V6 वाली भी, सेम इंटरफेसेस को। एंड देन यू कैन असाइन हियर EIGRP 100 आपने यहाँ पर चलाया था, यहाँ इसके OSPF EIGRP फॉर वर्जन 6 में भी यू कैन रन EIGRP 100। अब राउटर 1 और राउटर 2 IPv4 के टर्म से भी कम्युनिकेट कर रहा है, IPv6 के टर्म में भी, मतलब सेम इंटरफेस पे IPv4 भी है, सेम इंटरफेस पे IPv6 भी है। IPv4 are also communicating, IPv6 are also communicating. This is called dual stack. Dual मतलब दो चीज, V4 और V6 दोनों चीजें को एग्जिस्ट करती हैं। पढ़ लो, को एग्जिस्ट ऑन द सेम इंटरफेस एंड नेटवर्क। स्टैटिक, डिफॉल्ट, डायनेमिक, वही सब चीजें हैं बस। तो अब बस ये स्लाइड घर जाके देख लेना, दैट वुड बी गुड।